shining down. Like, I'd just be like, ooh, ah, only accessible by drone. Motivator ain't walking out in the dark, y'all. Okay? Oh, it's a viewpoint. Or is it like a doorbell? Bioluminescent fungus. That's a once in a lifetime view right there. It's like multiple waterfalls. Hopefully it's not deadly. Okay, we're gonna travel over a little bit to Western India today, and we are looking at Amboli Ghat. Here we go. दोस्तों, मैंने इस जगह के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ खुद आया तभी मुझे समझा कि ये जगह मैंने जितनी सोची थी Whoa, उससे look at कहीं that. ज्यादा अनोखी और खूबसूरत है। Oh man. यहाँ आपको देखने मिलते हैं कुछ अनोखे टेम्पल्स, That's a temple? बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स, That's nice. dense Whoa, that's jungle, cool. It kind घाट of looks के like, look घुमावदार at that रास्ते, road. फूलों से It kind of भरे looks like बड़े northeast बड़े India. प्लेटूज, सुंदर ग्रासलैंड्स, Wow, look at that. कुछ ब्रेथटेकिंग व्यू पॉइंट्स, फोर्ट्स, एक मिस्टीरियस Wow. ग्लोइंग फॉरेस्ट और भी कई सारे हिडन Whoa. लोकेशंस। Whoa, dude. यह है दोस्तों अम्बोली, एक अम्बोली। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो बसा है सह्याद्री के पहाड़ों के बीच। Look at how green that is compared to the landscape and the road. Wait a minute, does that waterfall, does the road go over the waterfall? Or, yeah, it's like little bridges. Wow, that would be a cool drive. That's awesome. आज के इस सिनेमैटिक व्लॉग में मैं आपको सिर्फ शॉर्ट्स ही नहीं बल्कि इन सभी अनोखी जगहों की इंटरेस्टिंग कहानियां भी दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। That's cool. I've never seen a temple like that. No, usually temples are तो on हमारा a mountain सफर स्टार्ट or होता है something like that. सावंतवाड़ी से Not with a pool. और वाया अम्बोली घाट हम जाने वाले थे अम्बोली विलेज में। अम्बोली विलेज सह्याद्री के पहाड़ों के बीच बसा Wow. एक छोटा सा निसर्ग रम्य गांव है। So he's saying this is Amboli village. I thought Ghat was. What does Ghat mean? I thought it was like Amboli village. I'm obviously wrong. Let me know in the comments. जहां आप सावंतवाड़ी, पणजी, बेड़गांव और कोल्हापुर से बाय रोड आसानी से पहुंच सकते हो। हमने जैसे ही सावंतवाड़ी छोड़ा That's some और nice अम्बोली घाट winding की roads तरफ बढ़ने up there. लगे, यहाँ का जंगल बहुत ज्यादा डेंस होने लगा। Yeah, that's dense. That looks like the Amazon. That looks like the Amazon forest. It's so thick. Look how thick that is. Serious biodiversity, you know. That looks like, okay, so I've been doing a lot of videos on like Northeast India, Nagaland, Sikkim, all the areas of Northeast India, and this kind of reminds me of that. So if this is in the west, this is in the is this in the northwest? I thought it was just the west. Pretty Uted. हरे भरे खेतों के बाजू से गुजरने वाले रास्ते अभी घने जंगल से गुजर रहे थे। Yeah. Because I mean they're going up in elevation, I guess. यहाँ Yeah, के look how dense जंगल that की is. कैनोपी इतनी ज्यादा घनी है कि एरियल व्यू में भी यहाँ के रास्तों के बस Little ग्लिम्स peekaboos. दिखाई देते हैं। That would be an awesome drive through there. लगभग 1 घंटे की राइड करने के बाद हम पहुंच गए अम्बोली घाट के Dude, be सबसे careful. सीनिक स्पॉट पर। एक तरफ खड़ी है वो मैजेस्टिक रॉक वॉल, जो रॉक वॉल That's से cool. गिरते हैं कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स। I've never seen anything like that ever. That's रॉक वॉल के super बगल unique. से गुजरता है अम्बोली घाट का वाइंडिंग रास्ता।
और दूसरी तरफ घने जंगल से ढकी हुई वैली। ये घुमावदार अंबोली घाट के रास्ते हर एक मोड़ पर एक नया ब्रेथ टेकिंग नज़ारा दिखाते हैं। Yeah. ये I wonder how many tourists they have there. घाट अपनी gotta be a शांति और खूबसूरती से दिल जीत लेता है। अंबोली घाट सच में प्रकृति का एक मास्टरपीस है। ये रॉक वॉल पर बिछी फूलों और पत्तों की चादर और उन पे गिरता ये ठंडा पानी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। That's beautiful. I wonder, is this a place where it snows also? Because that road would be treacherous in the winter. दिल भर Or के does it अंबोली always stay घाट के kinda? नज़ारे देख लिए और जैसे ही सूरज ढलने लगा हम निकल पड़े हमारे होटल की तरफ। लेकिन प्रकृति के पास हमारे लिए एक और सरप्राइज था और तभी हमें देखने मिला ये ह्यूज गोल्डन गॉड रे जो पूरी वैली को एकदम रोशन कर रहा था। That's cool. He's just like shining down like that's awesome. अंबोली घाट में कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, लेकिन ये वाटरफॉल सबसे ज्यादा फेमस है। यह है दोस्तों अंबोली मेन वाटरफॉल। Wow, it's got steps going up हर to it साल too. मॉनसून के दौरान हजारों लोग इस वाटरफॉल को देखने आते हैं और रास्ते के बिल्कुल बाजू में स्थित होने के कारण ये इजीली एक्सेसिबल है। That's यहाँ nice. की एंट्री फीस है सिर्फ 20 रुपीज पर पर्सन और सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस वाटरफॉल का मजा ले सकते हो। Wow. Like it's cool to see the वाटरफॉल के different स्टेप से जब यहाँ पानी color, like from the top of the waterfall and then it goes down the mountain. The it's almost like a carpet of neon green. You know, it's all green, but it changes brightness and intensity as it goes. Like there's layers, different plants maybe that live there. That's cool. बहता है ना तो वो एकदम ड्रीमी लगता है। That would be cool to visit. ये हरे भरे क्लिफ से जब ये वाटरफॉल का पानी बहता है तो वो एकदम रिफ्रेशिंग और एक थ्रिलिंग वाइब Yeah, क्रिएट see करता like है। that. Like it's like all the different colored light green, different vegetation. That looks so cool. What an awesome place, man. अगले दिन सुबह सुबह जब अंबोली विलेज एक फॉग की चादर में लिपटा हुआ था और सूरज देवता की पहली सुनहरी किरणें धीरे धीरे यहाँ के जंगल को रोशन कर रही थी, तभी हम निकल पड़े अंबोली विलेज से बस 4 किलोमीटर की दूरी पे बसे एक खूबसूरत मंदिर में दर्शन लेने के लिए। Oh. Is ये there है is दोस्तों there a reason you have to ring the bell before you go into? Is that all temples or is that just this temple? Like to ring a bell before you go in? Or is it like a doorbell like, "Hey, I'm here for whoever's taking care of the temple." Is there any significance behind that? Let me know in the comments. श्री हिरण्यकेशी मंदिर Shri Hiranyakashi. पार्वती माता और शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर बहुत ही शांत और सुंदर है। Ooh, that's बट ये nice. मंदिर की एक और खास बात है, I wonder if you could swim in it, or is that ये not something पानी you के swim कुंड in? में देखने मिलती है एक छोटी अनोखी मछली जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी पानी के कुंड में देखने मिलती है। Really? In this water ये है body? दोस्तों शिस्तुरा हिरण्यकेशी, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज। Whoa, that's crazy that fish is only found in this body of water at the temple. Whoa. Yeah, there's 2020 definitely no में swimming there पहली then. बार
इस खूबसूरत मछली के बारे में पता चला। संस्कृत में हिरण्य का मतलब होता है सोना और केशी का मतलब बाल। Golden hair. और शायद इस मछली के अपीयरेंस के आधार पर ये नाम रखा गया होगा। 3 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली ये मछली दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। Devaso. यहाँ के Maso. लोकल्स इसे देवाचो मासो ऐसा कहते हैं, यानी भगवान की मछली। ये कुंड उगम स्थान है हिरण्यकेशी नदी का और ये मंदिर के बिल्कुल पीछे एक लैटराइट स्टोन की केव आपको देखने मिलती है। Ooh, cool. Man, he's walking with no shoes on. My feet would be killing me right now walking on that. I'd just be like, ooh, ah, ah. ये केव के काफी अंदर जाने के बाद आपको देखने मिलता है ये नदी का एक्चुअल उगम स्थान, जहाँ एक नेचुरली फॉर्म्ड कुंड के Oh, अंदर से पानी that's आता cool. है। ये कुंड तक जाना थोड़ा रिस्की है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ट्राई मत करना। That dude's, I would be have a शिस्तुरा hard time getting हिरण्यकेशी there. फिश को वीडियो में कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है यहाँ आने के लिए, बिकॉज बाद में यहाँ काफी लोग आते हैं Oh, जो they इस can get कुंड in में the स्विम भी water करते हैं, with the जिस वजह endangered से fish in ये there? फिश स्टोन्स के नीचे छुप जाती है। You'd think they would. अगर ज्यादा You'd think they would not let people in there because the endangered. Well, it's a temple, also, so you're swimming in the temple in holy water, I guess, right? Man, it's kind of a. I mean, I guess the fish have survived there, so. ह्यूमन एक्टिविटीज ये कुंड में हुई और टूरिस्ट बार बार इस कुंड में Oh, उतरने no. लगे, तो ये मछली Yeah. कुछ ही सालों में That's not good. ये दुनिया से कंप्लीटली वैनिश भी हो सकती है। Eee. That's kind of. मंदिर में दर्शन kind of a tough लेके thing to अभी हम निकल पड़े एक सातारा about. के कांच पठार जैसा प्लेट्यू देखने के लिए, जो इस मंदिर That's से pretty. बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे था। ये प्लेट्यू का नाम था नेने प्लेट्यू। Please don't try searching for this name on Google Maps. It is known only to a few locals living around. Reaching the tabletop is also very difficult as no vehicles can get to the top of this mountain. It's probably better for the environment or like the local wildlife environment and the plants and stuff there. Honestly. ये प्लेट्यू पे हम चढ़ के जाने ही वाले थे, Ooh, बट wow. तभी एक लोकल रहने वाले अंकल ने हमें और एक खूबसूरत प्लेट्यू के बारे में बताया, जो इससे भी और ज्यादा बड़ा और ज्यादा खूबसूरत था। Only accessible by drone. ना कोई क्राउड, ना कोई एंट्री फी, Oh, there's a road there. ना कोई कचरा और ना कोई रेस्ट्रिक्शंस। Wow. बस फूलों का असली जादू। That would be pretty to see. Oh, there's red flowers. पिंक, वाइट Pink, और कुछ white, येलो yellow. फ्लावर से कवर्ड ये प्लेटू, पीछे नीला गगन और ये चरते हुए गाय, ये एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। That's cool. Well, what a peaceful अक्टूबर place के to live if you're the सेकेंड cow, वीक huh? तक ये फूलों की चादर आपको यहाँ देखने मिलती है, बट ये एग्जैक्ट लोकेशन मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज अगर ये वायरल हुआ तो यहाँ That's okay. फूल कम I think that's और okay. कचरा ज्यादा होगा। अगर आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो मेरा आइटरनरी जरूर डाउनलोड करना, और अगर आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ बिल्कुल कचरा मत करना। Yeah, definitely don't litter. ये प्लेटू के खूबसूरत नज़ारे देख के अभी हम निकल Ooh, पड़े another waterfall. और एक ह्यूज वाटरफॉल देखने के लिए। Man, that road is like अंबोली orange. विलेज से Is that like कुछ clay or 19 something? किलोमीटर्स की दूरी पर है।
यह है दोस्तों बाबा वाटरफॉल। Baba waterfall. Baba means father, right? Wow, that's a cool one. ये वाटरफॉल तक व्हीकल्स इजीली जाते हैं, that's बट यहाँ cool. का मैनेजमेंट कभी कभी व्हीकल्स को एकदम आगे तक जाना अलाउ नहीं करता, और फिर आपको ये वाटरफॉल तक जाने के लिए That's okay. 300 से 400 मीटर का वॉक करना पड़ता है। Ooh, that's cool. बाबा वाटरफॉल के पीछे एक रॉक में एक ह्यूज कैविटी है, It's like a और एक cave. गिरते पानी पर underneath that. सूरज देवता की रोशनी पड़ती है ना, तभी यहाँ आपको एक सुंदर इंद्रधनुष्य देखने मिलता है। Could you imagine like thousands and thousands of years ago and you lived here and this was like a place that was just part of where you lived? You know, what if you lived in one of those caves behind the waterfall? That would be kind of awesome. It's so neat. Wow. ये लोकेशन पर बाबा वाटरफॉल के साथ साथ आपको और 3-4 अलग अलग वाटरफॉल्स Wow, there's a देखने lot of मिलते waterfalls हैं, here. जिनमें से कुछ वाटरफॉल्स के नीचे आप मस्त नहा भी सकते हो। Yeah, for sure. You know, in the summertime, it's gotta feel so refreshing to just stand under that waterfall. That's awesome. वेल दोस्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो एक मस्त ऐसी कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर बनती है, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो Yeah, after this, I'm सब्सक्राइब gonna का put a link बटन to दबा के ही this जाना। actual video in the description. And go प्रॉपर्टी give him a में like थोड़ा and रिलैक्स subscribe to करके him. अभी हम निकल पड़े And if you haven't liked and subscribed to my channel yet, that would be awesome. Thanks. I appreciate it. अंबोली के Whoa, look at that. 2 बेस्ट व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए। पहला जो व्यू पॉइंट था वो Whoa. हमारे प्रॉपर्टी से बस 2.7 किलोमीटर की दूरी पे था, और यहाँ से आपको अंबोली वैली का एक पैरानॉमिक व्यू देखने मिलता है। The colors are amazing. यह है दोस्तों महादेवगढ़ Look at व्यू that पॉइंट। thing. What is that? Oh, it's a viewpoint. Wow. Is it really that ये व्यू colorful? पॉइंट तक आप अपने व्हीकल से इजीली जा सकते हो। ये एक्चुअली एक किला Oh था my gosh. जो किले से अंबोलीघाट रीजन पर नजर रखी जाती थी। That is so cool. ये व्यू पॉइंट एक सनसेट पॉइंट भी है, बट सनसेट देखने के लिए हम निकल पड़े और एक खूबसूरत पॉइंट पर, जो मेरे हिसाब से अंबोली का वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। Wow. ये व्यू पॉइंट पे भी आप अपने व्हीकल से इजीली पहुंच सकते हो, और ये व्यू पॉइंट का नाम है Dude. कावड़े साध व्यू पॉइंट। Wow, dude. That's a once in a lifetime view right there. It's like multiple waterfalls. The whole valley. Okay. So that looks like Jurassic Park. I know I've said that for other videos before, but that straight up looked like something out of the dinosaur times. Man. Or like King Kong would be in there someplace. That's so awesome. Look at that. ये व्यू पॉइंट पर जाते समय ऑन द वे हमें देखने मिला ये खूबसूरत ग्रासलैंड। Those are cool plants. Like they're like little bubbles of plants, bushes. Once again, the colors. Look at the yellow flowers mixed in कावड़े with the साथ green. पॉइंट से आपको कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने मिलते हैं। That's an amazing viewpoint right there. Dude. बड़े Dude. बड़े वेस्ट फेसिंग क्लिफ्स, 7 से 8 ह्यूज वाटरफॉल के नज़ारे और ठंडी हवा। ये जो वैली में 7 से 8 That is बड़े बड़े crazy. वाटरफॉल्स गिरते हैं ना, वो सारे वाटरफॉल के वाटर स्ट्रीम्स मिलके बनाते हैं टेरिकुल नदी का
एक मेन ट्रिब्यूटरी। I guarantee you when Americans think of India, this is not what they think of. This is so cool. This is so awesome. कावड़े सात पॉइंट एक परफेक्ट सनसेट पॉइंट है। Sunset Point, that's definitely a place to go to. That is a bucket list for sure. अंबोली घाट एक्सप्लोर करने के बाद शाम के वक्त यहाँ पीसफुल वाइब्स के साथ सनसेट एंजॉय करने का मजा कुछ और ही होता है। Has anybody been to this sunset point in Amboli Ghat? This is, if you have, like, tell us what, like, let us know how it was when you were there. Like, is it as amazing as he's showing us? Is it that colorful? Like, that place, man, that view is breathtaking. Breathtaking. I could stand there for till the sun went down. ये बड़े बड़े क्लिफ्स और ये वाटरफॉल के व्यूज आपके दिन भर की थकान को चुटकियों में मिटा देंगे। Talk about just filling you with awe standing there. एक्सप्लोरेशन तो हमारा हो ही गया था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, नाइट Night जंगल वॉक। jungle walk. Yeah, I don't know about that. क्योंकि दोस्तों अंबोली आए और यहाँ का नाइट जंगल नहीं देखा तो क्या ही देखा। So in that area, the jungle there, is there like, I don't know, jaguars, bears, tigers and stuff like that? Because if there are, Motivator ain't walking out in the dark, y'all. Okay? I'm staying home where it's safe. रात के समय ये पूरा एरिया घने फॉग से घिर चुका था और ये फॉगी नाइट्स एकदम परफेक्ट होते हैं ये जंगल एक्सप्लोर करने के I don't लिए। know if it's perfect for exploring. हमने बस 700 से 800 मीटर का एक वॉक किया और इतने छोटे पैच में ही हमें देखने मिला एक ऑलिव फॉरेस्ट स्नेक, जो a एक snake. रेयर स्नेक है। Great. Hopefully it's not deadly. अंबोली के जंगलों में आपको ऐसे कई सारे Oh, रेयर spiders, centipedes, great. देखने मिलते हैं जो दुनिया में और don't कहीं नहीं know. मिलते। I don't know, man. Whoa, that's a slug. That's two slugs. और यहाँ Probably पर getting it हमें all. देखने मिला एक झाड़ का ग्लोइंग स्टेम, जो स्टेम के ऊपर कुछ फंगस आती है जो रात के समय ऐसी ग्लो करती है। Ooh, that's cool. Bioluminescent fungus. That's cool. लेकिन दोस्तों Nature's एक awesome. बात याद रखना, जंगल एक्सप्लोर करते समय लीच से बच के रहना, वरना मेरे जैसी हालत हो जाएगी। Got him. He got him. वेल दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो Yeah, that was super cool. Amboli Ghat. That place was nothing that I expected. 100% I did not expect that. Thanks again, Freddy Uteb, for recommending this video the other day, actually. And as always, smile, be kind, and don't be a hater, be a motivator. Go out there and motivate somebody, and I will see you on the next one. Later. Bye. I'd just be like,